लोक निर्णय 2024। Welcome to our ongoing series on elections, Lok Nirnay 2024. In this program, we bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I am Kaushik Rai with my co-anchor Manoj Pathak. नमस्कार, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024 कार्यक्रम में चुनाव से जुड़े समाचारों के साथ साथ स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ हम करेंगे चर्चा। इसके अलावा चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे चुनावी तैयारियों के बारे में। आज स्टूडियो में हमारे साथ आमंत्रित हैं राजनीतिक विश्लेषक रोशन गौड़। रोशन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। Welcome to the studios, Roshan ji. Thank you. The headlines: all arrangements in place for sixth phase of Lok Sabha elections tomorrow. 58 parliamentary constituencies spread over 6 states and 2 union territories to be covered in this phase. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi addresses rallies in Punjab and Himachal Pradesh. Congress leader Sachin Pilot campaigns for party candidate in Shri Anandpur Sahib constituency of Punjab. लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 58 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में रैलियों को किया संबोधित और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। All arrangements are in place for the sixth phase of Lok Sabha elections to be held tomorrow. 58 parliamentary constituencies spread over 6 states and 2 union territories will be covered in this phase. These include 14 seats in Uttar Pradesh, all 10 in Haryana, 8 each in Bihar and West Bengal, all 7 seats of Delhi, 6 in Odisha, 7 in Jharkhand and 1 parliamentary constituency in Jammu and Kashmir. The voting will begin at 7 a.m. and end at 6 p.m. A total of 889 candidates are in fray in this phase. Elaborate arrangements have been made by the Election Commission to ensure smooth and hassle-free voting. State chief electoral officers, district election officers and state machinery have been advised to take adequate measures to manage hot weather conditions. Security has also been beefed up in the polling areas to avoid any untoward incident and ensure free and fair polls. प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि INDI गठबंधन देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एजेंडा जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 लागू करने और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने का है। इससे पहले शिमला संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार सुरेश कश्यप के समर्थन में नाहन में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में देश की सेना और मजबूत हुई है। आज भारत दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को अनेक पैकेज का उपहार दिया और हिमाचल के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। श्री मोदी ने दावा किया कि भाजपा ने देश भर में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की गारंटी दी है, जिससे हिमाचल की भी हजारों महिलाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी और वे अतिरिक्त बिजली बनाकर अपनी आय को भी बढ़ा सकेंगे। All India Congress Party General Secretary Sachin Pilot campaigned for the party candidate in the Shri Anandpur Sahib constituency of Punjab today. Addressing an election rally at Nurpur Bedi, he criticized the central government, stating that the BJP at the centre has weakened the constitutional institutions and made the common man poorer by enriching industrialists. He emphasized that upon the formation of the India Alliance government, MSP will be given to farmers on a priority basis. Sachin Pilot also attacked the Punjab government and said that the promises made by this government to the poor people have not been fulfilled and now people will teach them a lesson. He said that he is campaigning in the state and it is good to see that people are in favor of the Congress party. And we now bring you excerpts from an interview of Prime Minister Narendra Modi with Doordarshan. This interview was telecast earlier. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री जी, उड़ीसा में 25 साल का शासन जिनको आप सीधे चुनौती दे रहे हैं, दूसरी तरफ बंगाल भी है और साथ में बिहार भी लगता है। इस बार 5 चरण के चुनाव के बीच क्या मूड लग रहा है जनता?
4 चरण के चुनाव इंडी अलायंस पूरी तरह अस्त हो चुका है। अब जो चरण शुरू हुए हैं वो हमें 400 पार जाने की मजबूती दे रहे हैं। आज भी मैं मतदाताओं से कहूंगा, भारी मतदान करें, जी भर करके मतदान करें, देश के लिए मतदान करें। प्रधानमंत्री जी, नारी शक्ति जिसकी आप सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, वाराणसी में हमने देखा एक बूढ़ी दादी अपने 4 साल के पोते को कंधे पर लेकर आई और कहा कि मोदी इनके दादू हैं। ये आपको लगता है कि काफी ज्यादा भार आपके ऊपर डालता है, ऐसी भावना है? जब मुझे इस प्रकार की घटनाओं का पता चलता है या मैं भी जब कभी रास्ते में चलता हूं तो ये अनुभव करता हूं, जैसे बच्ची देखिए हाथ जोड़ करके बैठ जाइए, ये चीजें किसी भी व्यक्ति को भावुक करने वाली है। और पॉलिटिशियन के जीवन में शायद ये ऐसा रेयर हो सकता है कि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद। और मैं देख रहा हूं कि भारत की नारी शक्ति आने 25 साल में भारत की गति के लिए 2 मैं बड़े निर्णायक फैक्टर देखता हूं। एक, हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा यानी उड़ीसा, हमारा झारखंड, हमारा बिहार, हमारा बंगाल, ये हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका है, या पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा जो ग्रोथ इंजन बनेगा। दूसरा, मेरे देश की नारी शक्ति, 50% नारी शक्ति, उनका जिस प्रकार से सामर्थ्य निकल करके आ रहा है। जब मैं कह रहा हूं मैं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अवसर देने हैं और मेरे गांव की बहनें लखपति दीदी बन के रहेगी, ये मेरा विश्वास है। जिस देश में इतनी सामर्थ्यवान मातृशक्ति हो, मैं गुजरात से आया हूँ, हमारा पूरा जो डेयरी उद्योग है, आज अमूल जो दुनिया में इतना मशहूर है, उसकी पूरी ताकत महिलाएं हैं, पूरा उद्योग महिलाएं चलाती है। आप लिज्जत पापड़ देख लीजिए, दुनिया में ब्रांड है लिज्जत पापड़, पूरी तरह महिलाओं के द्वारा ड्रिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी देश की महिलाओं में एक अभूतपूर्व सामर्थ्य है, और अगर हम हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को अवसर दे, तो देश की इकोनॉमी को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नया नेतृत्व मिलेगा। और इसलिए मैंने G20 में आग्रह रखा है, विमेन लेड डेवलपमेंट। मोदी जी, इस 2.5 दशक के अपने करियर में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले ही 3.0 की बात होने लगे, तीसरे टर्म की बात होने लगे। अब सस्पेंस है कि जब आप वापस आएंगे तो क्या आप एक रिवोल्यूशनरी क्रांति लेकर आने वाले हैं? ज्यादातर राजनेता सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, उसी के इर्द गिर्द खोए रहते हैं। मैं उससे कोसों दूर हूँ। मैं मानता हूँ कि पद एक कार्यभार है, पद ये प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता है, जीवन खपाना होता है, और ये चीजें लास्ट मोमेंट नहीं करनी होती है, बहुत पहले से तैयारी करनी चाहिए। इतना बड़ा देश है, उसकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए, उसके आधार पर नीतियां बनानी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, निर्णय करने चाहिए, और तब जाकर के फैसले होते हैं, परिणाम मिलते हैं। और जब नीयत साफ होती है ना, तो नतीजे भी शानदार मिलते हैं। अंतिम सवाल है मेरा प्रधानमंत्री जी आपसे, जब जब हमने देखा 14 में भी 19 में भी आपके खिलाफ जब भी कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ निचले स्तर पर जाकर, जनता ने और ज्यादा भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। इस बार भी कोई आपको तानाशाह कह रहा है, और यहाँ तक कि कांग्रेस कह रही है एक चाय वाला प्रधानमंत्री इसीलिए बना क्योंकि हमने देश में ऐसा लोकतंत्र बनाया। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, मैं संविधान सभा का, उस समय सभी महापुरुषों का सर झुका करके प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया कि एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब माँ का बेटा, और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए कि उसने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे लिए तो संविधान शासन चलाने का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। मेरे लिए एक राजनेता के रूप में, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में संविधान मेरा मार्गदर्शक है, और मैं उसका पुजारी हूँ। तो अब 400 पार देश की जनता का संकल्प है, अबाल वृद्ध का संकल्प है, देश के गांव का संकल्प है, देश के गरीब का, देश के युवा का, देश के किसान का, देश की नारी का, इन सब का संकल्प है कि इस बार देश 400 पार के साथ नई सरकार के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चुनावी रैली के दौरान दूरदर्शन की ओर से ली गई इंटरव्यू के संपादित अंश। आइए आगे बढ़ते हैं। And now we go over to
Ara, Bihar for the constituency profile, and it has been presented by Dharmendra Rai. In Ara parliamentary constituency, this time there is a direct fight between BJP nominee R.K. Singh and CPI ML candidate Sudama Prasad. The bureaucrat turned politician R.K. Singh is vying for his third consecutive victory from this seat. On the other hand, the CPI ML candidate Sudama Prasad, who is MLA from Tarari Assembly constituency, is banking on consolidation of vote banks of Grand Alliance parties RJD, Congress, Vikasil Insan Party and left allies. In 2019, RK Singh had garnered the support of more than 52% of votes of total polling. And on the other hand, CPI-ML candidate Raju Yadav had got around 39% votes from the constituency. The Ara seat, which came into existence in 1977, and since then it has witnessed a mixed type of representation of parties like Congress, Samta Party, Lokdal and others. The Ara parliamentary seat has been represented by RJD and BJP each 2 times. If we look at the political equation, out of 7 seats, there is a dominance of Grand Alliance with representation of 5 seats in the state legislative assembly. 3 assembly seats are held by RJD and 2 each by CPI-ML and BJP. Ara, Gaur Sahib, is really interesting because third time Union Minister of State Shri Rajkumar Singh will be fighting from this prestigious seat of Bihar. And very interestingly, Sudama Prasad, a sitting CPI Marxist-Leninist MLA, is taking him on. So, what is your assessment on this? देखिए 2014 में भी आरके सिंह ने यहाँ से जीत हासिल की थी और तब उनको 39% सीट मिली थी और जब वो 2019 में उन्होंने जीता तो उनका परसेंटेज बढ़कर 52 हो गया था। इसका मतलब उनकी वहाँ लोकप्रियता बढ़ रही है। और अगर हम देखें कि उनका जो उनके खिलाफ सीपीआई एमएल के कैंडिडेट ही हारे थे और इस बार फिर सीपीआई एमएल के कैंडिडेट है, लेकिन इस बार वहाँ कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई एमएल और सीपीआई इन सबका एक महागठबंधन है, तो इसलिए हो सकता है कि इनका जो वोट परसेंटेज है वो इस बार ज्वाइंट हो और जो जीत का मार्जिन या हार जीत का जो अंतर होगा हो सकता है उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो। लेकिन आरके सिंह की जो पॉपुलैरिटी है वो एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण और दूसरा अपना व्यक्तिगत जो वो बिजली मंत्री के हिसाब से यहाँ रहे तो उसके कारण आरा में उनका जो अपना स्थानीय उनकी पहचान है उसे मुझे लगता है उनकी पॉपुलैरिटी मिल रही है। यहाँ पर हम चलना चाहेंगे अपने अगले खबर की ओर। And we now go over to our correspondent in Lucknow. What are the हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे क्षेत्रीय संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी जी हैं। सुशील जी, कल मतदान होना है, भीषण गर्मी को देखते हुए क्या सब तैयारियां की गई हैं मतदान को देखते हुए? जी देखिए, मतदान को देखते हुए चुनाव आयोग ने पूरे इंतजाम किए हैं। पिछले 4-5 चरणों से हम देख रहे हैं कि मतदान प्रक्रिया जब से शुरू हुई है लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और पिछले 2 चरणों के दौरान ये गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हीट वेव का भी अलर्ट किया जा चुका है उत्तर भारत में और पर्टिकुलरली ये जो 14 सीटें हैं जिन पर पोलिंग होनी है, जिन पर कल मतदान होना है, वहां पर भी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है आसपास के क्षेत्रों में। तो वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से न केवल जो मॉडल पोलिंग बूथ और अन्य पोलिंग बूथ है वहां पर शेड के इंतजाम, पानी पीने के इंतजाम किए गए हैं, लोगों को आने जाने में सहूलियत हो इसके लिए उनको मतदान केंद्रों के पास तक जाने की भी सहूलियत दी गई है। जहां पर पोलिंग की कतारें लगती हैं, मतदान की कतारें लगती हैं पोलिंग बूथ पर, वहां पर शेड वगैरह इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने हर मतदान केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी रखी है जिसके पास ORS और अन्य जीवन रक्षक दवाएं रहती है ताकि इनकेस अगर किसी के साथ कोई ऐसी आकस्मिक घटना होती है तो उसका पूरा उपचार किया जा सके। तो भीषण गर्मी को लेकर के लगातार चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है। क्षेत्रीय प्रशासन जो है, अलग अलग जिलों के प्रशासन है, उनकी तरफ से भी बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं। उनकी तरफ से जी बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। ये श्रोताओं, हम आपको लिए चले गोरखपुर, वहां से वहां की जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ओम अवस्थी।
गोरखपुर लोकसभा सीट को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर गोरखनाथ मंदिर से जुड़े 3 लोगों ने 32 वर्षों तक लोकसभा में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व किया है। गोरखपुर लोकसभा सीट पर अब तक सबसे अधिक 8 बार भाजपा ने जीत हासिल करने में सफलता पाई है। इसके अलावा कांग्रेस इस सीट पर 6 बार, 1 बार जनता पार्टी, 1 बार समाजवादी पार्टी, 1 बार हिंदू महासभा और 2 बार निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में कामयाब हुए हैं। 2017 तक योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार यहां के सांसद रहे, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने यह सीट छोड़ी तो 2018 के उपचुनाव में सपा के प्रमील कुमार निषाद ने भाजपा के उपेंद्र शुक्ला को इस सीट पर हरा दिया था। 2019 के चुनाव में इस सीट पर बतौर भाजपा प्रत्याशी भोजपुरी फिल्म स्टार रवि किशन ने 3 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा ने एक बार फिर रवि किशन को अपना प्रत्याशी बनाया है। इंडिया गठबंधन से सपा ने भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। काजल इस चुनाव से पहले विधानसभा और गोरखपुर मेयर का चुनाव भी सपा पार्टी से लड़ चुकी हैं। वहीं बसपा ने जावेद सिमनानी को प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहरी, गोरखपुर ग्रामीण और सहजनवा शामिल हैं। यहाँ करीब 19,50,000 मतदाता 1 जून को 13 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। पहले गोरखपुर पर टिप्पणी क्या आसार है वहां, और उसके साथ ही पूरक प्रश्न, साथ साथ समय चूंकि कम है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो हालात है उसमें वोटर टर्नआउट कैसा होता दिख रहा आपको? देखिए, जो गोरखपुर है, दरअसल वो गोरक्षपीठ का ही वहाँ बोलबाला है। एक बार जो 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने जब वहां से इस्तीफा दिया था और मुख्यमंत्री बने थे, तो उस वक्त बाई इलेक्शन में बीजेपी वहां हार गई थी, लेकिन उसके बाद से फिर शुक्ला जी जो अपने रवि किशन जी हैं वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। तो वहां माहौल तो कुल मिलाकर, चूंकि गोरक्षपीठ का ही सारा वहां दबदबा रहता है, तो वहां मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ रहने वाला है। लेकिन जो बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश में ओवरऑल, तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि जो वोट परसेंटेज है वो वाकई औसत से कम है। तो वोट प्रतिशत बढ़ने की जरूरत है, और अगर जो चुनाव आयोग हमारी कोशिश कर रहा है और हमारे जितने एक्सपर्ट हैं, जितने हमारे जो फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, वो लोगों को फोन कर रहे हैं कि वोट डालो, तो ऐसा लगता है कि शायद इसमें कुछ अगर वोट प्रतिशत बढ़े तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र का त्योहार है और इसमें सबको इसमें भागीदार होना चाहिए। जी, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंड प्लीज रिमेंबर 27 सीट्स tomorrow and on the 1st of June go for polls in the last 2 phases, and we also would urge all eligible voters to exercise their franchise. It is our duty towards democracy. We go over to our unit in Chandigarh. Ashwini Kumar Sharma is with us. Ashwini ji, Haryana is going for polls tomorrow in all the 10 seats. What are the arrangements that have been made for tomorrow's polling? Mr. Kaushik, 20,031 polling stations have been set up, and out of them, total 14,342 are in rural areas, and 176 are vulnerable, and 2,286 are critical. And in view of it, more than 35,000 police personnel and 110 companies of paramilitary forces will be deployed, and additionally 24,000 home guards will be stationed throughout the Haryana. That the polling parties have reached the polling stations as per information received from the Chief Electoral Officer. So videography and webcasting will be done at the polling stations, and apart from that, 99 pink booths managed by women, 71 booths managed by person with disabilities, and 96 booths managed by youth employees have been set up. And around 2,76,786 voters will cast their vote tomorrow, and 1,11,143 service voters have already cast their vote through ballot. Thank you for this update, Ashwini ji. And we now go over to the constituency profile of Bathinda. It is being presented by Sushil Sharma Shantal. Bordering with Haryana and Rajasthan, the Bathinda Lok Sabha constituency consists of a total of 9 urban and rural assembly segments. The sitting MP Harsimrat Kaur Badal is the Shiromani Akali Dal candidate. She is trying to woo the voters for her 4th consecutive victory. Even though this is traditionally a Badal family's stronghold constituency, but the Akali Dal's partner BJP also contributed to her victory in the past, and now this time the situation is different, and she is facing a tough challenge from BJP's Parampal Kaur Sidhu, who started her journey from bureaucrat to politician.
Agriculture Minister in the Aam Aadmi Party government, Gurmeet Singh Khudiya, is giving edge to his campaign by counting the achievements of 2 years. Jeet Mohinder Singh Sidhu from Congress Party, Nikka Singh from Bahujan Samaj Party, and Lakhbir Singh Lakha Sidhana from Shiromani Akali Dal Amritsar also campaigning day and night. That was our correspondent Sishu Sharma Shantal talking about the Bathinda constituency of Punjab. First of all, Gaur Sahab, the Bathinda constituency of Punjab has been a stronghold of the Badal family, and Harsimrat Kaur Badal has been looking after it for many terms now. How do you assess this and Punjab? देखिए, जो हरसिमरत कौर हैं, उन्होंने ये उनका 3 बार चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन अब वो जब पिछली बार वो चुनाव जीती थी तो वो बीजेपी के सहयोग से जीती थी। इस बार बीजेपी और अकाली दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और पिछले जब वो चुनाव जीती थी तो केवल 24,000 वोट से जीती थी। तो इस बार उनके सामने जो आम आदमी पार्टी है वो अलग है। हालांकि वहां कांग्रेस इस बार अलग चुनाव लड़ रही, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का गठबंधन पंजाब में नहीं हो पाया है। लेकिन कुल मिलाकर जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने आज वहां रैली की थी और कहा था कि वहां के मुख्यमंत्री अपना अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उनको दिल्ली में आके तिहाड़ जेल जाना पड़ता है। तो इसलिए वहां एक माहौल है कि ये जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उससे जितनी उम्मीदें थी वो उम्मीदें सफल नहीं हो पाई हैं। तो उसका असर मुझे लगता है कि चुनाव में जरूर दिखेगा अगर हम ओवरऑल पंजाब की बात करें तो। लेकिन भटिंडा सीट जो कि बादल परिवार से है, तो ऐसा हो सकता है कि उस परिवार के लोगों में जो एक, हालांकि प्रकाश बादल जी भी अपना चुनाव हार गए थे पिछली बार अगर आपको याद हो, तो इसलिए ये सीट इस बार बादल परिवार के लिए टफ तो लग रही है। जी, एंड नाउ वी गो ओवर टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट इन दिल्ली, भूपेंद्र, प्लीज इन्फॉर्म आवर लिसनर्स अबाउट द प्रिपरेशंस फॉर टुमारोज पोलिंग इन द नेशनल कैपिटल। यह दिल्ली में कल होने वाले चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर सारी तैयारियां कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। मैंने अभी नई दिल्ली संसदीय सीट पर मतदान की व्यवस्था का जायजा लिया। यहाँ मतदाताओं की सुविधा के लिए पीने के पानी, मोबाइल टॉयलेट, दिव्यांगों के लिए रैंप, महिलाओं और बुजुर्गों के बैठने के लिए प्रतीक्षालय, क्रैच और मेडिकल रूम बनाए गए हैं। राजधानी की 7 लोकसभा सीटों के लिए शहर में 13,637 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 70 गुलाबी मतदान केंद्र भी शामिल हैं, जिनका प्रबंधन महिला मतदान कर्मचारी करेंगी। पहली बार प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक मतदान केंद्र होगा, जो पूरी तरह से विकलांग व्यक्तियों के जरिए संचालित किया जाएगा। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। मतदाताओं की बात करें तो दिल्ली में 1,52,00,000 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें से 82 लाख पुरुष और 70 लाख के करीब महिला मतदाता हैं। पहली बार 2,52,000 से अधिक युवा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए कुल 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा से इनका कड़ा मुकाबला है। प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज का मुकाबला आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है। वहीं चांदनी चौक सीट पर कांग्रेस के जेपी अग्रवाल का मुकाबला भाजपा के प्रवीण खंडेलवाल से है। पूर्वी दिल्ली सीट पर भाजपा के हर्ष मल्होत्रा के सामने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार चुनौती पेश कर रहे हैं। वहीं दक्षिणी दिल्ली सीट पर भाजपा के रामवीर सिंह बिदूड़ी का मुकाबला आम आदमी पार्टी के सहीराम पहलवान से है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर भी रोचक मुकाबला होने के आसार हैं। यहाँ भाजपा के मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस के कन्हैया कुमार है। जी, थैंक यू भूपेंद्र फॉर दैट अपडेट। यहाँ पर हम हरियाणा की ओर आपको लिए चलना चाहेंगे। हरियाणा में 10 सीट पर और सारे सीटों पर कल ही चुनाव होना है और वापस दिल्ली ही लौटना चाहेंगे, समय अभाव है। यहाँ भी 7 सीटों पर मुकाबला कितना कड़ा दिख रहा है, खासतौर से हरियाणा को ध्यान में रखते हुए, जहां नेतृत्व परिवर्तन हाल में हमने देखा है सत्ता पक्ष की ओर से। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली में तो इतना टफ मुकाबला नहीं होने वाला है, लेकिन हरियाणा में कुछ ऐसा दिख रहा है क्योंकि वहां जो जाट समुदाय हैं और किसान है, वो कुछ उनकी नाराजगी दिख रही है। जैसे अभी हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट को गांवों में नहीं आने दिया और इसी के कारण बीजेपी ने जो दुष्यंत चौटाला है उनसे अपना गठबंधन तोड़ा था कि जो जाटों की नाराजगी है वो दुष्यंत की तरफ अगर चले जाए तो बाद में फिर गठबंधन हो सकता है। लेकिन वो अभी तो जब ये रिजल्ट आएगा तो हमें पता लगेगा। लेकिन हरियाणा में थोड़ा सा मुझे मुकाबला टफ दिखाई दे रहा है, पर दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में क्योंकि एक तो
यहाँ एक रवैया है लोगों का कि राज्य में आम आदमी पार्टी और केंद्र में मोदी सरकार। तो हमने 2019 में भी देखा और अभी भी ऐसा जो लोगों का बातचीत और इसका हमें नजरिया देखने को मिल रहा है। ये तो जो क्या इसमें होगा ये तो हमें 4 जून को पता लगेगा, लेकिन जो अभी लोगों से बात हो रही है वो उसमें ऐसा लोगों का मूड दिख रहा है। And also talking about other states that we have big states like Punjab and also states like Himachal Pradesh which go into the polls in the last phase. So just a short while back we were talking about Bathinda. How do you assess Punjab as a whole? Because Punjab will go to polls in just 1 week's time on the 1st of June. देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, जिसका उनको नुकसान होने वाला है, क्योंकि जब जब इन वोट एकजुटता उनकी होती है, एक साथ वो होते हैं, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाता है। इस बार बीजेपी और अकाली दल का भी गठबंधन नहीं हुआ, तो ऐसा यहाँ लग रहा है कि पंजाब में एक बिखरा हुआ हमको वोट मिलेंगे, क्योंकि जो भी कांग्रेस के बड़े नेता थे वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी की भी एक सिटिंग सांसद वो बीजेपी में आ गए हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये जो वहां पे 3 कोण का मुकाबला होने वाला है, 3 या 4 कोण का, बल्कि कई कुछ सीटों पर 4 का भी हो सकता है। जहां तक आपने हिमाचल की बात कही, तो हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली, यहाँ थोड़ा लोगों को ऐसा लगता है कि एक तो देवभूमि है, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बीजेपी के तरफ वो लोग जाते दिखते हैं। और दूसरा जो वहां पर अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल में 3 रैलियां की हैं, पहले हमीरपुर में गए और आज वो शिमला और मंडी में गए थे। तो प्रधानमंत्री का 4 सीटों के लिए 3 रैली करना, ये भी मुझे लगता है कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव भी होने वाले हैं, वहां क्या आसार लग रहे हैं? मुझे लगता है कि जो उपचुनाव हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि वहां सुखू सरकार के खिलाफ लोगों ने बगावत की थी, कांग्रेस के ही जी। और जिस एक व्यक्ति ने बगावत की थी राजा विक्रमादित्य ने, तो वो इस वक्त मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए लोग शायद इस बात को समझ रहे होंगे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की थी, और अब ये अननेसेसरी लोगों के ऊपर थोपा गया है कि हाँ उपचुनाव हो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं थी। एक सवाल और, अभी तक हमने देखा है कि पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार वोट प्रतिशत कम रह रहा है, कल क्या आसार लग रहा है? हालांकि भविष्यवाणी कठिन है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है दिल्ली और हरियाणा में तो अच्छी वोटिंग होने वाली है, और हम उम्मीद करें कि पश्चिम बंगाल में भी अच्छी वोटिंग होगी, उड़ीसा में भी ठीक से होगी। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा ऐसा लगता है लोगों में कि शायद वो ज्यादा गर्मी के कारण बाहर नहीं निकल पा रही है, क्या वजह हो सकती है इसका लोग बाद में एनालिसिस करेंगे। लेकिन हम सभी यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, चाहे बारिश हो। ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व होता है और इस पर्व में अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए। ये श्रोताओं अहम बात है, हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अपने अधिकार का उपयोग हम 5 वर्षों में, या कह लें जब कभी चुनाव होते हैं तभी कर पाते हैं वास्तविक असली अर्थों में। तो अपने मत अधिकार का प्रयोग अवश्य कीजिए, और उसके लिए थोड़ी गर्मी लगे तो छतरी लेके जाइए, पानी साथ लेके जाइए, लेकिन वहां पंक्ति में रहकर अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। यही हमारी आग्रह आप सभी से। Absolutely, Manoj ji, and let us once again request all the eligible voters to cast their vote, and the Election Commission and the state election officers have made all arrangements for peaceful, fair polls, and with all facilities such as water and seating spaces for elderly and other things. And Roshan Gaur ji, you discussed various issues and enlightened our listeners with your valuable inputs. Thank you so much indeed. Thank you. इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अपने सभी संवाददाताओं और आप श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। आप सबसे एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि लोकसभा सीट की तय तिथि पर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत अधिकार का उपयोग अवश्य कीजिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित कीजिए। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, ये भी जानकारी हमें अवश्य दें।